Everyone is saying data science is saturated and AI will replace data scientists. Well, let me hit you with some numbers. 35 lakh rupees, that's what senior level data scientists are making in India right now. 50% talent shortage, that is what is the gap between the demand and the qualified professionals right now in India. The truth is, data science is one of the best career bets you can take in 2026 and even in the coming years if you know how to play it right. So hi guys, if you are new here, let me first introduce myself. I am Mansi and today I am going to tell you why data science is still a gold mine career in 2026 and in the coming future. I'm not going to talk about some random predictions. I am talking real salary data, job projections and what's actually happening inside the companies right now. अगर आप इंटरनेट पे बहुत सारे conflicting videos देख के परेशान हो गए हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, एंड तक आपको सब क्लियर हो जाएगा. Let's dive in. The numbers don't lie. Let's start with some facts from official sources. The US Bureau of Labor Statistics, one of the most credible job prediction website, states that data science is a career that's set to grow 34% from 2024 to 2034. That's 10 times faster than the average of all other occupations. We are talking about 23,400 job openings every single year for the coming decade. And get this, data scientist is the fourth fastest growing career in the whole US economy. You will ask, Mansi, what about India? In India, data scientists are earning anywhere from 7 lakh as a fresher to 35 to 55 lakh plus with just a few years of experience. मतलब 2-3 साल का experience लेते हैं and package easily 35 lakh plus होता है. मेरे खुद के दोस्त हैं जिनका पैकेज इतना ज़्यादा है, भले वो अच्छी कंपनीज में बैठे हैं बट थोड़े साल का एक्सपीरियंस होते ही पैकेज बहुत जल्दी बढ़ता है इवन इन इंडिया. ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ये कोई रैंडम कॉन्वर्सेशनल टॉक्स या फैक्ट्स नहीं है. दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट डेटा एंड सैलरी सर्विस फ्रॉम 2025. इस ईयर में ही जो सैलरी सर्वे हुए हैं उसमें से ये डेटा निकला हुआ है एंड एवरीथिंग इज लेजिटिमेट. The market is exploding. Here's what most people don't realize. The global data science platform market was about $95 billion in 2021. By 2026, it's projected to be $322.9 billion. That's a 27.7 compound annual growth rate. Why? Because every industry, healthcare, finance, telecom, manufacturing are heavily investing in data and even in AI. But here's the worst part. McKinsey predicts a 50% talent shortage by 2026. So मेरा ये सब stats बताने का सिंपल मतलब ये था कि आप समझ जाओ ये फील्ड अंडर सैचुरेटेड है. लोग बहुत कम है जिनको सही में कुछ आता है, उनके कंपैरिजन में ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा है. But what about AI replacing data scientists? Okay, so let's address this AI thing now. AI is not replacing data scientists, it's just helping us. McKinsey's research says that AI will reshape entire data science work, it will never eliminate them. In fact, एक McKinsey partner ने तो ये भी बोला था कि data professionals की बहुत ज़्यादा requirement होगी फ्यूचर में, because AI जो भी काम खराब करेगा, जो भी उसके इम्प्लीमेंटेशंस फेल होंगे उनको रिकवर करने के लिए डेटा प्रोफेशनल्स की ही रिक्वायरमेंट होगी. सो या उनकी नीड कभी नहीं जाने वाली है. इसका सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन ये है कि जितना एआई ग्रो करेगा उतनी ही नीड बढ़ेगी स्किल्ड डेटा प्रोफेशनल्स की जो उसको करेक्ट वे में डिप्लॉय कर पाए. व्हाट स्किल्स डू यू एक्चुअली नीड? चलो मैं आप पहले ही बता देती हूँ, ये करियर फील्ड ईजी नहीं है एंटर करने के लिए, बट अगर आप सीरियस हो तो मैं आपको स्किल्स बता देती हूँ जो आप सारी कवर कर लेना इस फील्ड को एंटर करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल द कोर टेक्निकल स्किल्स, पाइथन, मशीन लर्निंग, सीक्वल एंड डेटा रैंगलिंग, statistics and mathematics, deep learning and neural networks, NLP, cloud platforms like Azure or AWS, data visualization like Power BI और Tableau. तो ये सब तो थे बेसिक कोर टेक्निकल स्किल्स. नाउ लेट मी टेल यू द सॉफ्ट स्किल्स. कम्युनिकेशन, बिजनेस थिंकिंग एंड कोलैबोरेशन. सॉफ्ट स्किल्स बता दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि रेज्यूमे में बस आप कहीं लिख दो. आप देखना कि आपको कोलैबोरेट करना आता है,
कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हैं एंड बिजनेस थिंकिंग आप में है तो ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा होगा, वरना ये स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी थ्रू मेकिंग पर्सनल प्रोजेक्ट्स एंड जस्ट नोइंग अबाउट देम, लर्निंग अबाउट देम, तो ही ये स्किल्स आएंगी। बस रेज्यूमे में लिखने से सॉफ्ट स्किल्स नहीं बनती है। मैं शुरू में डेटा साइंस फील्ड ही एंटर कर रही थी एंड मैंने इसमें एक इंटर्नशिप भी की हुई है। आई नो डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जो ना बस पढ़ के नहीं आएगी, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बनाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत हेक्टिक होते हैं, बट मेक श्योर ये सब कोर सब्जेक्ट्स पढ़ के ही आप बैठ ना जाओ। प्रोजेक्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल गेट यू सिलेक्टेड एंड बाकी लोगों से दैट विल मेक यू स्टैंड आउट। अभी तक वीडियो में कुछ भी समझ में आ रहा हो, मेक श्योर यू गिव इट अ लाइक। मुझे बहुत हेल्प मिलती है ऐसे सच वीडियोस लाने में। एंड मैं यूजुअली डेटा एनालिटिक्स पे वीडियो बनाती हूँ, बहुत कम डेटा साइंस पे बनाती हूँ। अगर आप चाहते हो मैं और डेटा साइंस रिलेटेड वीडियोस लाऊं, मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो यू वांट अ वीडियो ऑन डेटा साइंस एज वेल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंडस्ट्रीज हायरिंग लाइक क्रेजी। अगर आप एक इंडस्ट्री से बोर हो गए हो तो इजीली आप स्विच कर सकते हो एंड आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ये डेटा साइंस की ना बेस्ट क्वालिटी है। आप एक इंडस्ट्री में कुछ साल काम करोगे, फिर जब आप स्विच करोगे आप अपना एक्सपीरियंस साथ लेके जाओगे। ऐसा नहीं, आपको शुरू से एज अ फ्रेशर एंटर करना पड़ेगा दूसरी इंडस्ट्री में। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट डेटा साइंस। Education, what you really need. So here's the reality check on education. 70% of job openings in 2025 require a degree. That's up from 47% in 2024. So mostly सारे roles ये degrees मांगते हैं। Bachelor's is the minimum. CS में, इंजीनियरिंग में, मैथ में, स्टैट्स में, किसी में भी चलेगी, बट बैचलर्स इज द मिनिमम। एंड ऑल्सो मास्टर्स और PhD इज प्रिफर्ड फॉर सीनियर डेटा साइंस रोल्स। ये तो थी थोड़ी सी बैड न्यूज़, बट गुड न्यूज़ भी बता देती हूँ। Companies are becoming more flexible in the coming years. A UK study found that the degree requirement went down by 50%, whereas the requirement for AI practical skill went up. मैंने खुद नोटिस किया है, आजकल कंपनीज को कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट्स नहीं चाहिए, चाहिए ठीक है होने चाहिए, बट उनको आपका रियल काम देखना है। आपको एक्चुअली में डेटा साइंस रिलेटेड टर्म्स समझ में आते हैं, उनका काम समझ में आता है। इवन इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अ वेरी बिग कॉलेज एंड ऑल, ग्रेजुएट नहीं किए हो आप लाइक IIT NIT से, थर्ड टायर कॉलेज से भी अगर आप निकले हो, आपको रियल वर्क पता है, आपने प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं, आपको सब समझ में आता है, तो दे विल टेक यू ईजीली एंड इवन ऑन गुड पैकेजेस। द challenges. I am known to be brutally honest in all of my videos, so here's the honesty of this video. Data science career के अपने खुद बहुत सारे challenges हैं and here are a few of them. Entry level competition is real. Since AI आ गया है और वो बेसिक काम संभाल लेता है, कंपनीज हायर ही नहीं करना चाहती फ्रेशर्स को, क्योंकि फ्रेशर्स वही करेंगे, बेसिक काम ही संभालते हैं, धीरे धीरे वो सीखते हैं। तो AI उनका बेसिक काम संभाल लेता है एंड इसीलिए फ्रेशर्स की डिमांड कम हो गई है, हायरिंग भी कम है। ऐसा नहीं है हायरिंग नहीं है, बट अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है, एकदम ज़ीरो लेवल पे हो आप, तो आपकी हायरिंग बहुत मुश्किल है। आपने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किए होने चाहिए, आपने इंटर्नशिप्स की हों, तभी आपको लेना बहुत ईजी होगा कंपनी के लिए, रैदर देन मैंने कोर्स किया हुआ है एंड प्लीज़ मुझे कंपनी में ले लो, फिर मुश्किल होगा। सेकेंडली, कंटिन्यूस लर्निंग इज़ मैंडेटरी। ये तो पूरी डेटा फील्ड के लिए ही है। एज अ डेटा एनालिस्ट मैं बता सकती हूँ, मैं न्यू टेक्नोलॉजी हर महीने हर हफ्ते सीखती हूँ, हर हफ्ते कुछ न्यू स्किल्स तो सीखती हूँ। सो एज अ डेटा साइंटिस्ट एज वेल, न्यू टूल्स आएंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज आएगी, आपको कॉन्स्टेंटली लर्निंग मोड पे रहना पड़ेगा। 60 to 80% ऑफ टाइम आप डेटा क्लीन करने में ही लगोगे, डेटा मैनेजमेंट में ही रहोगे। सो डेटा रैंगलिंग विल टेक अप मोस्ट ऑफ योर टाइम। देन कम्स द एजुकेशन इन्वेस्टमेंट। एज आई टोल्ड यू, डेटा साइंस में एंटर करने के लिए आपको लगेगी एक मास्टर्स डिग्री या फिर एक हाई लेवल की डिग्री, उसके लिए पैसा भी लगेगा और टाइम भी लगेगा। बट हियर्स द थिंग, एवरी हाई पेइंग हाई ग्रोथ करियर have challenges. The real question is it even worth it? For data science in 2026, it's absolutely worth it. So here's my final thought. अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, फ्यूचर आपका सिक्योर करने के लिए ये फील्ड में घुस जाओ आँख में पट्टी बांध के। बहुत ज़्यादा पैसा है यार, पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लानिंग।
व्हेन आई लुक अराउंड, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स से भी ज़्यादा डेटा साइंटिस्ट आज के टाइम में बना रहे हैं और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पैसा छापने वाले हैं। थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी। मैं भी सोचती हूँ कि डेटा एनालिस्ट बनने से पहले मैं अगर थोड़ा और ज़्यादा काम कर लेती तो डेटा साइंटिस्ट बन जाती, बट मेरे अलग रीजंस थे। मुझे कोडिंग नहीं आती थी, मैं पाइथन से बहुत ज़्यादा डरती थी, आज भी डरती हूँ। सो अगर आप पाइथन से नहीं डरते, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग आपको इंटरेस्ट देती है, तो मेक श्योर आप इस फील्ड में आंख बंद करके घुस जाओ। बहुत पैसा आएगा एंड फ्यूचर भी डेफिनेटली सिक्योर है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका थोड़ा भी कंफ्यूजन क्लियर हुआ है तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में लिखो डेटा साइंस 2026 एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं बहुत सारे डेटा फील्ड रिलेटेड वीडियोज लाती हूँ, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स एंड व्हाट नॉट। जिस पे भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एंड या लेट्स सी अगला वीडियो किस चीज़ पे आएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।